Hello everyone, welcome to another class of business studies, and today, as we know, we have already discussed our planning, right? So planning, the meaning of planning, and then we have discussed our features of planning, then we discussed our demerits and merits, or you can say advantages and disadvantages. Also we have discussed in rough. Now we will be discussing process of planning, which I have already told you in our last class. Now while discussing planning process, will be we have already discussed, right, that what planning is about, and then in planning we discuss what are objectives, and then we select, like planning is also about decision making, where we decide what we need to do, by whom we will get our work done, and how we will reach to our objectives. Okay, so this is that was all about planning. Now here we will be discussing planning process ki planning karna kaise hai. Now I've already told you that planning is definitely a complicated process because it requires a lot of research, it requires a lot of you can say evaluation, analysis of the market, where we are going to sell our products. It definitely is a hectic process, and it definitely requires a lot of labor and a lot of brains, right? And a lot of expertise is required in order to make a proper plan. But understanding the planning process is definitely not that tough, because it basically requires a few easy steps which can be followed and our plan can be done. Understanding the steps while you are studying is very easy, but while implementing this process is definitely a lengthy process and is a costly process if we want to make a proper you can say a feasible plan for the future. Okay, so yes, we can understand this process very easily. So let us go through this. So I have listed out all the points in steps of planning. So here the process of planning basically requires all these 7 steps that I have written. Now the first step, if you see, it is written setting up of objective. Now I have already told you the first and foremost thing that a firm needs to do is the firm should be knowing where they want to reach. मतलब एक एम होना चाहिए कि कहाँ पे जाके हमको पहुँचना है. अगर कोई टारगेट ही नहीं होगा तो हम लोग किस चीज़ के लिए काम करेंगे, राइट? Excuse me. So that's why the first step that has to be done, because we know that before planning we don't have any other steps, right? In management starts with planning. So first and foremost thing that we need to do in planning process is setting up the objective. Once we set up our objective, then we can definitely achieve it. Okay, then we have our next steps, that is developing premises. So developing premises means what? Here basically we forecast. Okay, कि मतलब बाहर का सिचुएशन कैसा है, ठीक है, कि हम लोग को फ्यूचर में क्या क्या फेस करना पड़ सकता है. So all this thing has to be analyzed, and these things cannot be forecasted. मतलब फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, 2-3 महीने बाद हम लोगों को क्या सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है. If we do not do proper analysis, then we cannot predict the future. Okay, even if we do proper analysis, still after that also whatever forecast we do, that may also become wrong, right? So yes, developing premises means what? हम लोग जो प्लान बनाएंगे उसको किस बेसिस पे बनाएंगे, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को प्लान बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोग क्या फेस करेंगे. तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? फोरकास्टिंग. ठीक है, फोरकास्टिंग रिगार्डिंग व्हाट? फोरकास्टिंग रिगार्डिंग द फ्यूचर. तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये महीने में हम लोग को ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी सेट अप आवर प्लान्स. तो अगर हम लोग अपने हिसाब से अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से प्लानिंग करते चले जाएंगे तो फ्यूचर में our plan might not work, right? So every person, while they make the plan, they
forecast regarding the future, that after few months, after few years, what kind of situation we are going to face, and according to that only our plan has to be set. Okay, so developing premises means forecasting regarding the future and what situations we are going to face in the future, and on the basis of that only we will be preparing our plan. तो बेसिकली अपना प्लान करना कहाँ से शुरू होता है? थर्ड स्टेप से शुरू होता है. तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स. सपोज आपका टारगेट होता है कि आपको सेल इंक्रीज करना है, ठीक है, कि ईयर एंड में जाके हम लोग को सेल यहाँ तक लाना है. सपोज 1 करोड़ तक अपने को सेल लाना है, ठीक है. अभी ये लाएंगे कैसे? ठीक है, इसके लिए हम लोगों को कई सारे ये करने पड़ेंगे, पॉलिसीज लाने पड़ेंगे. जैसे कि सपोज इफ आई वांट टू सेल मोर प्रोडक्ट्स और इफ आई वांट टू इंक्रीज माय रेवेन्यूज, देन व्हाट विल आई डू? I may offer some discount, right? I may you can say give offers related to credit sales. ठीक है, I may enable credit sales. So this kind of you can say you can give some incentives to the consumers or you can say your customers, so that they purchase your goods or they get the willingness to purchase your goods. ठीक है, तो जितना आपका सेल होगा तो आपका टारगेट जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है कि आपको सेल बाय 20%, बाय 10%, बाय 15% आपको इंक्रीज करना है, वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, बट उसके लिए प्रॉपर आपको सेटिंग तो करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग डिस्काउंट देंगे देन डेफिनेटली हम लोग का सेल इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ऐसे टाइप के हम लोग क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव्स चूज कर लेंगे कि हम लोग का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम लोग कई सारे ऑल्टरनेटिव चूज कर लेंगे. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स पहले लिस्ट करेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव्स अपने पास है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव्स वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. ओके, सो दिस इज व्हाट लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स मीन. देन नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे ऑल्टरनेटिव्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सारे ऑल्टरनेटिव्स पे चलेंगे, ऐसा नहीं होता है. कोई एक चीज हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है ना. सो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. अभी हम लोग क्या करेंगे? जो जो ऑल्टरनेटिव्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, लिस्ट किया है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट वर्दी होगा. ठीक है, यानी कि हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा. उसके सारे ऑल्टरनेटिव्स के नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को हम लोग लिस्ट आउट करेंगे. ठीक है, तो जो जो ऑल्टरनेटिव है जिसका नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है उसको कर देंगे रिजेक्ट, और जो जो ऑल्टरनेटिव है जिसका पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है उसको कर लेंगे सिलेक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव. तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली हर एक ऑल्टरनेटिव का नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को लिस्ट आउट करते हैं. लिस्ट आउट करके उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव है जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग को, जिससे हम लोग को सबसे ज़्यादा फायदा होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट we will be selecting our alternative in our next step. Okay, so it is written selecting an alternative. तो हम लोगों ने क्या किया? एनालाइज कर लिया कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा अपने लिए बेस्ट हो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सिलेक्टेड एन ऑल्टरनेटिव. अब हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी हम लोग का एक मेन प्लान होता है, ठीक है ना. अभी वो प्लान ही सब लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, अभी उस ऑल्टरनेटिव के हिसाब से ही सारे काम करेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए हम लोग 20% डिस्काउंट दे देंगे गुड्स पे, अभी सारे उसी पे काम करेंगे कि 20% डिस्काउंट देना है. ठीक है, अभी 20% डिस्काउंट देंगे. उसके साथ साथ अगर हम लोग को कोई ऐसा है जो ऐसे प्लान्स हैं, जो छोटे मोटे प्लान्स हम लोग को करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू यू कैन से अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. तो ऐसे छोटे मोटे, सपोज एक ये तो मैंने ट्रेडिंग का एग्जांपल ले लिया कि हम लोग सेल करेंगे तो 20% डिस्काउंट दे देंगे. ठीक है,
अगर हम लोग को सपोज प्रोडक्शन यूनिट है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम लोग का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो डिपार्टमेंट्स भी कई सारे बढ़ जाते हैं। फाइनेंसिंग का अलग होता है, एचआर का अलग होता है, फिर हम लोग का प्रोडक्शन का अलग होता है, सेलिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फर्म, है ना। तो अभी सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो अपने अपने एंड पे अपना अपना छोटा मोटा प्लानिंग करेंगे, सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, उनका काम है सेल करना, है ना, कैसे 20% डिस्काउंट पे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो अपनी तरफ से कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि खर्चा कम हो, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेगा एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। और so this kind of you can say a collaborative work, a cooperative work has to be done by all the you can say all the departments। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए अपने एंड में छोटे छोटे प्लान्स बना रहे हैं, अपने एंड से एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टू यू कैन से सपोर्ट द मेन प्लान, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे प्लान्स है उनको बोला जाता है डिराइवेटिव प्लान, ठीक है, डिराइवेटिव प्लान्स व्हिच हेल्प्स इन सपोर्टिंग द मेन प्लान। जो ऑल्टरनेटिव या तो जो प्लान हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने एंड पे सब सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तरफ से छोटे मोटे प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उनका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो काम हो रहा है वो एफिशिएंसी के साथ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। तो अब आ गया जो डिराइवेटिव प्लान्स बनाने थे, जो मेन प्लान बनाना था, सारे हो गए। अब क्या काम है कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, मतलब फाइनली एग्जीक्यूशन करना। अब एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो प्लान बनाया हुआ है उसमें कई सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे ही पता चलेगा जब एग्जीक्यूशन चालू होता है, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन दैट वी मे हैव टू फेस इन द रियल मार्केट, ओके। सो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान हैज स्टार्टेड, वट एवर यू कैन से देयर कैन बी सम positive you can say positive reactions to the plan as well as there can be some negative reactions to the plan। तो ऐसा हो सकता है कि प्लान एक्चुअली में काम कर रहा है स्मूथली, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी फेस करना हो रहा है ड्यू टू द प्लान्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉलो अप, मतलब जो प्लान हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉलो अप, कि हम लोग सुपरवाइज करें अपने प्लान के रिलेटेड जो काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करें। अगर वो प्लान काम नहीं कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है प्लान में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लान को फिर से मोल्ड करेंगे, फिर से चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करने का फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा प्लान्स में होना चाहिए। अगर नहीं होता है देन डेफिनेटली इट इज़ अ रिजिड प्लान विच मे ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द फर्म। So I have already discussed in our features also, whenever a plan is made, it should be, you can say, flexible, because there the situations in the future may be different, the real market situation may be different as compared to our thought process। जो हम लोगों ने forecast किया था वैसे नहीं हो सकता है हमेशा, ठीक है। So accordingly we may have to mold our plans, okay। So that's why follow up is a very important process। हर एक महीने के बाद, हर आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स और एवरी फ्यू डेज आवर प्लान शुड बी और यू कैन से a proper supervision is required in order to check whether our plan is actually working or not, okay। So these are the steps of planning process। Now what we have next in this chapter is our types of plans, which there are high chances that these types of plans may be deleted from your syllabus for this year। So let's see, we will discuss it in our next class, standing plans, and you can say there are different plans that we will discuss in our next class। For today we are leaving here।
or we may also skip types of plans for the time being, and later on when your deducted syllabus comes out, because we are in lockdown and we don't know whether your syllabus will be deducted or not. There are high chances that your syllabus will be deducted, so I am talking about your board only, CBSE board. So let's see. Next day I think I will start with organizing, and later on when your deducted syllabus is published by CBSE board, then we will start types of plans if it is there in the syllabus, because last year it was deducted. Okay, so we will end up our class today. I hope you understood this. Please read your book nicely so that you even get more connected with the theories. Okay, thank you so much and study nicely.